Hello everyone. In this video lecture we are going to learn about the concept of segmentation. In previous video lecture we have learned the concept called as paging. So what is the paging concept was? Paging simply divides our program into fixed size pages and the size of each page is decided by the hardware. But to achieve the user view of memory allocation, segmentation is used. So basically segmentation is nothing but a memory management technique in which memory is divided into variable size parts. In case of paging, your program or your process is divided into fixed size parts, okay, but in case of segmentation your memory is divided into variable size parts and each part or block is known as segment. So memory management is nothing but the scheme which supports the user view of memory. मतलब user यहाँ पे decide कर रहा कि how he or she is going to divide its मेमोरी, फिजिकल मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज पार्ट्स. यूजर पे डिपेंड होगा कि वो उसके फिजिकल मेमोरी को कैसे डिवाइड करेगा. मतलब वेरिएबल साइज पार्ट्स में उसकी फिजिकल मेमोरी डिवाइड होंगी, डिपेंड्स अपॉन द यूजर. सो हियर every program is nothing but the collection of segments, okay. That segment may be a main program, that segment may be a procedure, it can be a function, it can be a method and etc. यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस का व्यू दिया है सेगमेंटेशन का. हियर सबरूटीन is one segment, stack is one segment, symbol table is one segment, main program is one segment and sqrt is one segment. So your every program is nothing but the collection of segments and all those segments जो भी हम मेमोरी में स्टोर करेंगे उसकी साइज पे से ही हम वेरिएबल साइज पार्टीशंस थ्रू मेमोरी उसको अलोकेट करेंगे. This is the logical view of segmentation. For example, your process or program consists of 4 segments. Your program is having 4 segments, segment 1, segment 2 and segment 3 and segment 4. Okay, so this is your user space. User point of view, your logical memory will be look like this. Okay, but how actually ये चारों भी segments physical memory में कैसे stored होंगे? with the help of segmentation. So यहाँ पे physical memory में यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भी यहाँ पे grey boxes है these are the occupied block. Okay, so when we have to store that 4 segments into physical memory तो जहाँ पे भी physical memory में space available है randomly, okay, segmentation is a memory management scheme of non-contiguous memory allocation. ठीक है. सो रैंडमली फिजिकल मेमोरी में जहाँ पे भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उस फ्री ब्लॉक्स में हम सेगमेंट्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट सेगमेंट स्टोर हो गया, सेकेंड ब्लॉक खाली है तो यहाँ पे फोर्थ सेगमेंट स्टोर हो गया, ये नेक्स्ट ब्लॉक खाली है यहाँ पे सेकेंड सेगमेंट स्टोर हो गया एंड थर्ड सेगमेंट यहाँ पे लास्ट में स्टोर हो गया. सो रैंडमली फिजिकल मेमोरी में जहाँ पे भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे हमारे ये जो भी सेगमेंट्स है, right, that segments are getting stored in physical space. So this is nothing but the logical view of segmentation. This is the example of segmentation. For example, your program is divided into 5 segments, segment 0, segment 1, segment 2, segment 3 and segment 4. This is the logical address space. ओके मतलब क्या कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में ये सेगमेंट्स इसी तरह ये लॉजिकल व्यू थ्रू आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है प्रोग्राम. ओके, दैट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स और हर एक सेगमेंट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स को जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है उसको हमको जब भी हमको उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना होगा तो दैट सेगमेंट शुड बी लोडेड इनटू योर फिजिकल मेमोरी. राइट, मतलब जब भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस को वो पॉइंट आउट करेगा, लेकिन हमको एग्जीक्यूट करना है तो दैट सेगमेंट शुड बी प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी. सो एक्चुअली वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स फिजिकल मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होंगे, तो वो स्टोर्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल. जैसे पेजिंग के कंसेप्ट में वी आर यूजिंग द पेज टेबल. फॉर ईच प्रोग्राम देयर इज अ पेज टेबल प्रेजेंट इन योर मेन मेमोरी. लाइक दैट फॉर every program there is every segment table available in your memory which represents that program segments. Okay,
अब सेगमेंट टेबल में यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है लिमिट और बेस। बेस मतलब क्या, विच रिप्रेजेंट्स दी बेस एड्रेस ऑफ योर सेगमेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेगमेंट 0 में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है, ये एक सब रूटीन सेगमेंट है जहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी प्रेजेंट है, तो बेस मतलब क्या, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर सेगमेंट। ओके, सो सेगमेंट 0 का जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस। एंड सेकेंड हियर इज लिमिट। Limit means what? The size of your segment. Okay, so what will be the size of segment 0? Size or limit of segment 0 is 1000. Limit of segment 1 is 400. Limit of segment 2 is again 400 and so on up to. So segment table में क्या रहेगा, size of segment table and starting address of your segment table. So यहाँ पे ये जो ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर के जो भी बॉक्सेस है, दीज आर दी ऑक्यूपाइड ब्लॉक। ओके, और जो भी फ्री ब्लॉक है वहाँ पे हमारे सेगमेंट्स यहाँ पे रैंडमली स्टोर किए गए हैं। ठीक है, तो अब सेगमेंट टेबल में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखो अभी फॉर एग्जांपल सेगमेंट 0, सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस मतलब क्या है, सेगमेंट 0 का स्टार्टिंग एड्रेस है 400, मतलब 400 से हमारा सेगमेंट 0 स्टार्ट होगा, राइट। और व्हाट विल बी दी देन साइज ऑफ और लिमिट ऑफ योर सेगमेंट 0, the limit of segment 0 is 1000. so 1400 में 1000 अगर ऐड करते हो तो एड्रेस बनेगा 2400, राइट। सो with the help of limit and base register, your segment 0 is represent in that way in your physical memory, right। like segment 1, segment 1 का starting address क्या है, 6300, राइट। सो सेगमेंट 1 6300 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग एड्रेस इज 6300। एंड व्हाट इज द साइज और लिमिट ऑफ सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 की लिमिट और साइज क्या है 400। सो स्टार्टिंग एड्रेस में 400, साइज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6300 में अगर 400 ऐड करते हो तो उसकी साइज क्या बन जाएगी, मतलब लास्ट वाला एड्रेस क्या बन जाएगा, 6700। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे योर जो भी आपके यहाँ पे सेगमेंट्स है वो सेगमेंट्स फिजिकल मेमोरी में सेगमेंट टेबल थ्रू ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सो बेसिकली जब जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियसली बोला है कि CPU जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस, राइट, बट दैट लॉजिकल एड्रेस शुड बी ट्रांसलेटेड टू कन्वर्टेड टू फिजिकल एड्रेस। सो हाउ दैट कन्वर्जन यहाँ पे होता है वो हम देखेंगे अभी आप। So this is the segmentation hardware used for translating your logical address into physical address। अब segmentation part में जैसे पेजिंग के पार्ट में यहाँ पे पेज टेबल ऐड किया था, वैसे ही segmentation हार्डवेयर के पार्ट में यहाँ पे हमने ऐड किया है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में क्या क्या रहता है, बेस एड्रेस ऑफ ईच सेगमेंट एंड साइज ऑफ ईच सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे the address which is generated by the CPU, that is logical address, logical address is divided into two parts। First part is called as segment number and second part is called as offset of your instruction। okay, अब यहाँ पे देखो your segment number is pointing out to segment table। ठीक है, अब segment table में से जो भी यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलेगा, that output is being added with your offset। ये आपका offset है, instruction offset। instruction offset में जो भी यहाँ से हमको सेगमेंट टेबल से आउटपुट मिल रहा, ठीक है, दैट इज बेस एड्रेस मिल रहा, वो बेस एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, ऑफसेट के साथ, ऑफसेट इंस्ट्रक्शन के साथ ऐड कर रहे। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे एडिशन होने के बाद विल गेट दी फिजिकल एड्रेस विच पॉइंट्स टू योर फिजिकल मेमोरी। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट 0 के लिए हम वर्क करेंगे। ठीक है, CPU ने यहाँ पे सेगमेंट 0 के लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, राइट। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर क्या है 0, सेगमेंट नंबर 0 के लिए हम वर्क कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर 0 में मुझे 5th नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, सेगमेंट नंबर 0 की 5th नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो ऑफसेट यहाँ पे D क्या बना, इंस्ट्रक्शन ऑफसेट बना 5। ओके, नाउ यहाँ पे सेगमेंट 0 इनपुट गया, किसको इनपुट गया, सेगमेंट 0 सेगमेंट टेबल। ठीक है, मतलब क्या, सेगमेंट 0 के लिए यहाँ पे उसका सेगमेंट टेबल है,
राइट। अब सेगमेंट टेबल में क्या क्या है, लिमिट है और बेस है, ठीक है। अब लिमिट और बेस सेगमेंट का क्या है, 0 का, लिमिट इज 1000 एंड बेस इज 1400, लिमिट इज 1000 एंड बेस इज 1400। अब यहाँ पे देखो क्या चेक हो रहा, वेदर योर लिमिट इज लेस देन डी, मीन्स व्हाट, वेदर योर 1000 इज लेस देन 5, 5th नंबर की इंस्ट्रक्शन हमको एक्सेस करनी थी ना, सो वेदर योर 5 इज लेस देन 1000, yes your 5 is less than 1000, अगर आपका जो भी ऑफसेट है वो लेस देन आपका लिमिट है तो ही आप बेस एड्रेस के साथ योर ऑफसेट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बेस एड्रेस क्या था 1400, अब 1400 में 5th नंबर की इंस्ट्रक्शन एक्सेस करनी थी, सो 1400 में 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो 1405, सो 1405 नंबर की इंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, सो 1405 becomes your physical address, understood। now another concept is there, if your limit is greater than d, sorry if your d is greater than limit, यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट इज 1000, ठीक है। मतलब सेगमेंट 0 का कोड कहाँ से तो कहाँ तक है, it starts from 1400 and it ends at 2400, राइट। अगर आपका जो भी डेटा है वो लिमिट से अगर एक्सीड होता है, लिमिट से अगर एक्सीड होता है तो एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस है 1400, लिमिट ऐड हो रहा 1000, मतलब साइज ऐड हो रहा 1000, सो यहाँ पे लिमिट लास्ट वाला एड्रेस क्या बना आपका 2400, राइट। अगर कोई आपका ऑफसेट, फॉर एग्जांपल आपको 1001 नंबर की इंस्ट्रक्शन एक्सेस करनी है, ठीक है, सो 1001 नंबर की इंस्ट्रक्शन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही, वेदर योर डी इज लेस देन लिमिट, राइट। योर लिमिट क्या है, साइज क्या है 1000 एंड आपको इंस्ट्रक्शन कौन सी एक्सेस करनी है 1001 की, सो वेदर 1001 इज लेस देन 1000, नो, योर कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, मतलब क्या यहाँ पे एरर ऑकर होगा, क्योंकि अगर 1001 की इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे एक्सेस करने के लिए देख रहे, सो 1400 में 1001 ऐड होगा, मतलब आप किसको पॉइंट आउट करने के लिए बोल रहे, 2401 नंबर की इंस्ट्रक्शन आप एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे, लेकिन वो सेगमेंट 0 में प्रेजेंट ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ट्रैप डाला है कि अगर आपका जो भी ऑफसेट है वो लिमिट से अगर एक्सीड हो रहा तो यहाँ पे एरर ऑकर होगा, सो ऑलवेज योर जो भी ऑफसेट है दैट शुड बी लेस देन योर लिमिट, अगर वो लेस देन लिमिट है तो ही वो बेस एड्रेस के साथ ऐड होगा एंड विल जनरेट योर फिजिकल एड्रेस, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द इजीएस्ट सेगमेंटेशन हार्डवेयर which is used for translating your logical address to your, so this is the key difference between paging and segmentation. As we have seen in previous video, that is page is nothing but the fixed size block, but in case of segmentation, a segmentation is nothing but the variable size block. In case of paging, internal fragmentation occur because you are going to divide your memory into fixed size block, but in case of segmentation, external fragmentation will occur because you are going to divide your physical memory into variable size partitions, okay. In paging, your logical address is divided into your page number and offset, but in case of segmentation, your logical address is divided into segment number and offset, okay. In case of paging, the size of page is decided by the hardware, but in case of segmentation, the size of segment is specified by the user, okay. For address translation, that is translating address from logical address to physical address is done with the help of page table in case of paging, but in segmentation concept, logical to physical address generation is being done with the help of segment table, okay, understood. Thank you.